Hello guys, today I am going to start higher order derivative. In the last video, in the last class, I have discussed very short answer type questions of the differentiation. Now I am going to start higher order derivative. If y is equal to fx is the function, then dy dx is the derivative of y with respect to x, it can be represented. तो अगर मैं dy by dx को क्या लिख सकते हैं, अगर y is equal to fx है तो देन dy dx कैन बी रिप्रेजेंटेड एज f डैश x. तो देखो अगर सेकंड डेरिवेटिव करना है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ dy by dx, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, यू विल गेट नेक्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. इट इज क्लियर टू यू. अब देखिए इन द सेम वे if I do differentiation of second derivative once again, then you will get third derivative and the so on. तो higher order derivative can be represented in the notations. क्या क्या notations हो सकते हैं? वैसे नॉर्मल केस में आपके बुक में ये वाला और ये वाला नोटेशन ज्यादा यूज होता है, लेकिन फिर भी मैंने और भी डिस्कस कर दिए हैं. जैसे dy by dx फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, दिस द nth डेरिवेटिव. ऐसे ही अगर y है फंक्शन तो हम कहेंगे पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट तो y1, सेकंड में y2, थर्ड में y3 और nth में yn. ऐसे ही y डैश एक बार का, y डबल डैश सेकंड बार, y ट्रिपल डैश 3 टाइम डिफरेंशिएशन, y पे पावर n nth टाइम डिफरेंशिएशन. या फंक्शन को अगर fx के फॉर्म में है तो f डैश x, f डबल डैश x सेकंड टाइम हो गया, ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया, ये nth डेरिवेटिव हो गया. ऐसे ही है डेरिवेटिव ऑफ y, इसको dy मींस ये ऑपरेटर है, ये जो है ना ये d है, ये इक्विवेलेंट टू होता है d अपॉन dx के, दिस इज द ऑपरेटर. तो ये dy, d स्क्वायर y, dq y और dn y, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन. फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन e पे पावर x sin 5x. हाउ विल फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट आई विल कैलकुलेट और फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव. सपोज आई कंसीडर द फंक्शन y is equal to e पे पावर x sin 5x. Now I will differentiate with respect to x both sides. Differentiating with respect to x both sides. This will give dy by dx of d upon dx of e पे power x sin 5x. Here there are two functions in the product, so I will apply product rule of differentiation. First function as it is, derivative of second sin 5x plus sin 5x or derivative of e पे power x. Now e पे power x, differentiation of sin x will give you cos 5x. Now I will differentiate this number 5x, so it will give 5 only, plus डिफरेंशिएशन sin 5x as it is, एक्सपोनेंशियल x का डिफरेंशिएशन सेम, देयर इज नो चेंज. तो इसको मैं अगर मैं कॉमन ले लूं e पे पावर x, बट आई विल गेट 5 cos 5x प्लस sin 5x. ये मेरे पास फंक्शन आ गया. नाउ आई वांट टू डिफरेंशिएट अगेन फॉर गेटिंग द सेकंड डेरिवेटिव. तो again differentiating with respect to x. देखो मैं इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो ये होगा d अपॉन dx ऑफ dy by dx, यानी इस नंबर का एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा dy dx ऑफ नंबर क्या है मेरे पास, ये है फंक्शन. फंक्शन इज गिवन e पे पावर x 5 cos 5x plus sin 5x. This function is given to you. This having two functions also in the product, so I will use the product rule. First function as it is, e पे power x, derivative of second number, that is 5 cos 5x plus sin 5x, plus ये number as it is 5 cos 5x plus sin 5x and derivative of e पे power x. Now
This can be written as d square y upon dx square, that is the second derivative. अब e पे पावर x एज इट इज. अब देखिए 5, अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे 5 एज इट इज. डिफरेंशिएट ऑफ दिस नंबर विल गिव टू यू माइनस sin 5x. Now I will make the differentiation of 5x, that will give you to 5 plus differentiation of sin 5x will be cos 5x and differentiation of this number 5x will give you 5. तो ये हो गया अपना प्लस 5 cos 5x प्लस sin 5x और e पे पावर x as it is. Now I will take common e पे power x and simplify the function. E पे power x as it is, it will give to you 25 sin 5x plus 5 cos 5x plus देखिए e पे power x कॉमन तो बचा क्या 5 cos 5x plus sin 5x. This is the value. So I will recollect the terms. It will give 10 cos 5x minus 25 और प्लस का 1, it will be minus 24 sin 5x. Now I will take common 2. So 2 e पे power x function will be 5 cos 5x minus 12 sin 5x. This is the second derivative of the given problem. Now look at the next question. Find the second derivative of the function sin log x. First of all, I consider y as a function sin of log x. Now differentiating both sides with respect to x, I will get dy by dx is equal to derivative of this number will give you cos of log sin x, log x. Now I will make the differentiation of log x, but will give you cos log x, or derivative of log x will give you 1 upon x. So it will be 1 upon x. Now again differentiating with respect to x, again differentiating with respect to x, d upon dx of dy by dx, d upon dx of cos of log x upon x. This is the cosine form, u by v form. So by using that form, it will give you x square. X is the function derivative of this number cos of log x. This can be written in this form minus cos of log x into derivative of x. Now next step, x differentiation of cos will give you minus sin. तो माइनस साइन log x आ जाएगा डेरिवेटिव इसका बेटे. अब डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, log का. इन द नेक्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर इन दिस वे, log x का डेरिवेटिव करेंगे अगले स्टेप में माइनस cos ऑफ log x, और इसका 1 आ जाएगा ये अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया. अगले स्टेप में देखिए x माइनस साइन log x, डेरिवेटिव ऑफ log x विल गिव यू 1 अपॉन x माइनस cos ऑफ log x, और ये है हमारा एक्स स्क्वायर. देखिए x से x कैंसिल. नाउ आई विल टेक कॉमन एज माइनस साइन, सो इट विल गिव यू माइनस साइन ब्रैकेट में log x प्लस cos ब्रैकेट में log x होल अपॉन x square. This is the required answer. Now the next question is x is equal to a 1 minus cos theta is equal to this. Prove that d square y upon dx square is equal to this. How will solve this problem? This is the parametric form because their function is given x and y form. So first of all I will differentiating with respect to x,
with respect to theta because x and y both are the function of theta, so dx by d theta is equal to a. देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, ये माइनस cos थीटा तो ये प्लस साइन थीटा, फाइनली ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a sin theta is the derivative of this number dy by d theta, a theta का 1 with respect to theta plus cos theta, ये आ गया. Now I will find the dy dx, तो d upon dx, dy by dx is equal to, can be written as dy by d theta और dx by d theta. dy by d theta की वैल्यू है a 1 plus cos theta upon a sin theta. Now I will use trigonometric half angle formula for simplification. So it will give 1 plus 2 cos square theta by 2 minus 1 of a 2 sin theta by 2 and cos theta by 2. A से cancel, 1 1 cancel. This will give to you 2 cos square theta by 2 upon में 2 sin theta by 2 cos theta by 2. On simplification it will give cot of theta by 2. Cot theta by 2 इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. Now again differentiating with respect to theta. Now again differentiating with respect to, अब देखो x के रेस्पेक्ट में करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना है पॉइंट को. तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये तो आपको देगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर. अब लेकिन यहां पर हमारा डी बाई डी एक्स है, लेकिन फंक्शन किसका है, थीटा का है. कॉट ऑफ, ये क्या है, बेसिकली है कॉट ऑफ थीटा बाई 2. हम क्या करेंगे, यहां पर थीटा से मल्टीपल और थीटा से डिवीजन, तो ये डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ हो गया. ठीक है, इस तरह से करते हैं इस तरह के फंक्शन को कि डी बाई डी थीटा कॉट थीटा बाई 2 और ये डी एक्स यहाँ आ गया और डी थीटा यहाँ आ गया. देखो ये इस तरह से कैंसिल करें तो कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा. तो अब क्या होगा, अब ये थीटा का फंक्शन बन गया और हमने अभी कैलकुलेट किया है डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल करके डाल देंगे. ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका होगा कोसेक कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2. दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ और थीटा बाई 2. आप किसका करेंगे, थीटा बाई 2 का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा. क्या आएगा, 1/2 का डेरिवेटिव. अब ये क्या है, डी थीटा बाई डी एक्स है, हमने डी एक्स बाई डी थीटा निकाला है, इसका मतलब ये 1/a साइन थीटा, ये मैं लिख दूंगा. अब देखिए नेक्स्ट, ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1/2 इंटू 1/a. अब देखो साइन थीटा, अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट अप कर देते हैं, वो दैट विल बेटर है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे रहा हूं. ये हो गया हमारे पास माइनस 1/2a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये है. नाउ आई वांट टू कैलकुलेट, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो आई विल पुट और वैल्यू ऑफ थीटा इन द गिवन फंक्शन, कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 हो जाएगा, ये पाई बाई 2 रखेंगे तो, और ये साइन पाई बाई 2. इट इज क्लियर. अब देखिए वैल्यू कोसेक पाई बाई 4 मीन्स √2 होता है और साइन 90 आपको मान लेगा साइन पाई बाई 2 1 होता है. तो हम क्या करने वाले हैं, माइनस 1/2a, ये देगा आपको √2, क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, और साइन पाई बाई 2 1 देगा. तो बेसिकली क्या आ गया, ये ट्वाइस √2 का स्क्वायर करेंगे 2 अपॉन माइनस 2a. फाइनल आंसर विल बी माइनस 1/a. ये इसने प्रूव करवाया है, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड. Now the next question is question number 4. Y is equal to this. Find double derivative. देखो first of all this function giving the modulus, so I will define the function. कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए log x. अब मॉडुलस x की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया आपको. तो अगर ये पॉजिटिव होगा यानी log x
ये पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू e पे पावर 0 यानी x 1 से बड़ा हो जाए। इट मीन्स मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये हो जाएगा जब x 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा फंक्शन, और अगर log x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, log x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी। इफ log x is less than to 0, it means it lie between 0 and 1, this interval। तो ये हो जाएगा माइनस log x, ये हो जाएगा 0 से 1 में, ठीक है। चाहे इसको हम रिवर्स भी लिख सकते हैं, पहले मैं लेफ्ट लिख दूं फिर राइट, तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 में है तो ये नेगेटिव आ रहा है, और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज द सिंपली डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन। नाउ आई विल डिफरेंशिएट द फंक्शन। देखो dy dx करेंगे तो ये मेरा फंक्शन डेफिनेशन है, तो इसके हिसाब से -1/x आ गया, इसका 1/x आ गया, लेकिन इंटरवल ये रहेंगे ही, इंटरवल में कोई चेंज नहीं आएगा। अब नेक्स्ट में देखो अगेन, बिकॉज ही इज आस्किंग डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव इसका वाला इन फंक्शंस को एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो माइनस इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो साइन है ही, तो माइनस यहाँ आएगा तो x पावर -2, यानी फाइनली ऑन अगेन डिफरेंशिएशन दिस विल गिव 1/x² इन द सेम इंटरवल, और दिस विल गिव, इसका करेंगे तो माइनस साइन एडिशनल आ जाएगा तो -1/x², दिस विल गिव इन दिस इंटरवल, दैट इज द डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। Next question, x is equal to this, so that 1 - x² by 2 minus x by 1 minus a² by। तो देखिए यहाँ पर y1 और y2 मैंने जैसे कि आपको बताया था इस वीडियो में कि y1 y2 क्या है, फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव का रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ये फंक्शन दिया है, मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसका इनवर्स ले लूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, sin 1/a log y is equal to x। अगर मैं इधर साइन इनवर्स ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 1/a log y is equal to साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर log y कितना हो जाएगा, अगर हम log y को भी देखना चाहें तो ये हो जाएगा log y is equal to a साइन इनवर्स x। अब मैं करने वाला इसका एंटी लॉग लेंगे, ये हो जाएगा y is equal to e पे पावर a साइन इनवर्स x, ये फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई विल डिफरेंशिएट दिस फंक्शन, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इट विल गिव y1। देखो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 से रिप्रेजेंटेशन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, तो इसलिए ये ऐसा कैसा ही एज इट इज छूट गया। अब डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा a साइन इनवर्स x का, तो a है कांस्टेंट और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन है 1/√1 - x²। इट इज क्लियर। नाउ I will write in place of this function y, so it will be ay/1 - x²। It is clear। मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूं इसमें, क्वेश्चन में क्या है, प्रूव करना है 1 - x² रूट नहीं आ रहा है, जब इस तरह की सिचुएशन बनती है तो आई विल मेक स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड टू रिमूव दी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऐसा करेंगे तो रूट हट जाएगा, ऐसा करा मैंने तो क्या हो गया, ये y1² हो गया, ये आपके पास a² हो गया, ये y² हो गया, ये 1 - x² हो गया। इसके लिए इसको मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा हूं, तो 1 - x² y1² is equal to a² y²। नाउ आई विल अगेन डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन बिकॉज आई वांट टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव एज गिवन इन द एक्सप्रेशन। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, देखिए इधर दो फंक्शन है, सो आई विल यूज प्रोडक्ट रूल। तो 1 - x² एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस नंबर इट विल गिव 2/1, और y1 का डिफरेंशिएशन by2 प्लस y1²। अब देखिए 1 का डिफरेंशिएशन 0 और -2x, तो फाइनल इसका कितना आ गया, -2x इज द डेरिवेटिव इज इक्वल टू a² कांस्टेंट। पहले हम स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 2y, और y का डिफरेंशिएशन होगा तो हम लिखेंगे y1। नाउ आई विल टेक आउट कॉमन, 2y1 इज द कॉमन इन थ्रू आउट द एक्सप्रेशन, तो इट विल गिव 1 - x² by 2 minus x by 1 is equal to a² by,
Now I will take this terms also in the left hand side. So 1 minus x square by 2 minus x by 1 minus a square y is equal to 0. This is the required proof. यही हमें प्रूव करना था. तो डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड शेयर अवश्य करें, और कोई आपकी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में दें, अपने व्यू शेयर करें, जिससे हमें पता चले कि वीडियो में कोई और फर्दर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है. और अगर अब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में. धन्यवाद.